तो शुरुआत खबर क्रिकेट से। अजहरुद्दीन ने एपेक्स काउंसिल के 5 अरकान की जानिब से जारी करदा नोटिस पर रद्द अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ये तमाम 5 अरकान बदउनवानी में मुलव्विस हैं। पिछले 20-25 सालों से यही लोग ओहदे पर फायज हैं। इन अफराद को क्रिकेट के बारे में कुछ भी इल्म नहीं है, इसके बावजूद एपेक्स काउंसिल में ये शामिल हैं। अजहरुद्दीन ने कहा कि ये लोग नहीं चाहते कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन तरक्की करे, इसी वजह से ही इन्होंने मेरे खिलाफ साजिश रची है। वाज़ेह है कि एपेक्स काउंसिल ने अजहरुद्दीन को HCA के सदर के ओहदे से हटा दिया है। Tell you something. I mean, I'm elected person. Nobody can remove me. They cannot do 4-5 people cannot remove me as a president. I'm elected by the general body. First of all, they are tainted. They are facing charges. They are going to get their notices. I mean, I've already been show cause notice that the ombudsman will take into account whatever they have done. So they will get all the notices. I don't want to do anything wrong because they want to do things in their way. They want everything to happen in a way they want. So this thing doesn't happen because all this I mean, removing and all is all bogus news. These are bogus things because these are all illegal things. When they are already tainted, when they are already charged, I mean, they are already been under scanner. I mean, what these people are trying to suspend me? Please tell me. They are facing cases. They are attending courts every day. I am not attending courts. I have not done any misconduct. They are doing misconduct. See, the empty vessels make more noise. Remember always. So the vessels have become empty now. That's why it's making noise. Sir, so why targeted in this? Why do I think target? Because I want to do things which are right for the association. I don't want to do any illegal things. I don't want to, do any irregularities in the association. I want to do what is good for the association, what is good for the game of cricket. Because nobody is thinking about the game of cricket here. Now I am going to start a T20 tournament for all the clubs. All the 216, 220 clubs I am going to start, because everybody will get an opportunity to play T20 games, and then maybe out of those 3,000 boys who will play the T20 matches very shortly after the lockdown. आगे बढ़ते हैं। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन को ब्लैक मार्केट में फरोख्त करने वाली टोली का पर्दाफाश हो गया है। हैदराबाद टास्क फोर्स पुलिस ने ब्लैक मार्केट में फरोख्त करने की कोशिश करने वाले 2 ग्रुप के अरकान को हिरासत में लिया है। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की मार्केट में कीमत 7,000 रुपए है, जबकि इसको 35,000 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था, यानी कि 5 गुना ज्यादा कीमत पर। पुलिस ने मंसूबाबंद तरीके से इन अफराद को हिरासत में लिया है। Gang for smuggling and illegal procurement and selling of amphotericin B injections, which is used for mucormycosis. Mucormycosis ante commonly known as black fungus. ఈ ఆపరేషన్లో ఇప్పటివరకు 28 ఇంజెక్షన్స్ కి సీజర్ జరిగింది. ఎంఫోటెరిసిన్ బి ఇది ఒక యాంటీ ఫంగల్ మెడికేషన్ ఉంది, అండ్ ప్రస్తుతం ఒకటే హైదరాబాద్లో కాదు, ఎంటైర్ ఇండియాలో చాలా డిమాండ్లో ఉంది ఈ మెడిసిన్. మీ అందరికీ తెలుసు, ఈ కరోనా టైంలో లేటర్ స్టేజ్లో ఈ కొత్త డిజీజ్ మ్యూకోర్మైకోసిస్ బ్లాక్ ఫంగస్కి చాలా డిస్కషన్ జరిగింది. హైదరాబాద్లో కూడా కొన్ని హాస్పిటల్స్లో పేషెంట్స్ ఉన్నారు. అండ్ ఈ సిచ్యువేషన్కి some of the, I would say, criminal mind black marketing లో సేల్ చేసి డబ్బు కలెక్ట్ చేస్తున్నారు. तेलंगाना में कोरोना वायरस के 1,489 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 1,16,252 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 1,489 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। कल एक ही दिन में कोरोना से 11 अमवात भी हुई हैं। ग्रेटर हैदराबाद में सबसे ज्यादा 175, जबकि नलगोंडा में 131, खम्मम में 118, जिला निर्मल में सबसे कम सिर्फ 2 कोरोना के मामले सामने आए हैं।
साइबर क्राइम में मुलविस अफराद एक नए अंदाज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब तक फोन कॉल करते हुए और आवाम को झूठ बोलकर बैंक की खुफिया मालूमात इकट्ठा की जाती थी। अब एक नए ऐप को डाउनलोड करने के साथ ही आपकी खुफिया मालूमात दूसरे तक पहुंच जाएगी। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर ने आवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा है कि नए ऐप को विजिट करने से पहले इसकी अच्छी तरह जांच कर लें, इसके बाद ही नया ऐप डाउनलोड करें। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि नए ऐप को डाउनलोड करने से पहले इसकी शराइत आती हैं, उसको गौर से पढ़ने की बेहद अशद जरूरत है। జోకర్ రిలేటెడ్ మెలిషియస్ మాల్వేర్ అన్ని రిమూవ్ చేశారు, ఒకసారి రిమూవ్ చేశారు. బట్ యాజ్ యూ నో దట్ ఇది సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ ఒక ఫ్రంట్లో వేరే కవర్ పెట్టి బ్యాక్ సైడ్లో మళ్ళీ సేమ్ సాఫ్ట్వేర్ పెడతారు. ఫ్రంట్లో దే విల్ పుట్ సమ్ అదర్ థింగ్, సమ్ అదర్ అట్రాక్టివ్ నేమ్. ఇంతకుముందు 2 years బ్యాక్ ఒక బ్లూ వేల్ వచ్చింది. సో నౌ సంథింగ్ ఎల్స్ విల్ కమ్, బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ విల్ బి జోకర్స్ మాల్వేర్ ఓన్లీ. సో మన యంగ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్కి ఏం అడ్వైజ్ ఇస్తున్నాము, అన్నోన్ అన్కన్ఫర్మ్డ్ సైట్ విజిట్ చేయొద్దు. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్. డోంట్ విజిట్ అన్నోన్ ప్లేసెస్. ఎవ్రీథింగ్ అల్టిమేట్లీ కమ్స్ టు మనీ. మీరు ఎట్లా ట్రాప్ చేసి మీ పాస్వర్డ్, మీ అదర్ కాంటాక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్, దే విల్ టేక్ దాట్ అండ్ దెన్ దే విల్ మిస్యూజ్ ఇట్. బేసికలీ ఇదే ఉంది, 90% కేసెస్లో ఇదే ఉంది. और बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली मर्तबा एटला राजेंद्र ने हुजूराबाद का दौरा किया। एटला राजेंद्र ने हुजूराबाद में रोड शो किया, जिसमें बीजेपी लीडर विवेक के अलावा तेलंगाना कानून साज काउंसिल के साबिक चेयरमैन स्वामी गौड़ व दीगर भी मौजूद थे। मकामी अवाम ने एटला राजेंद्र का मुस्तकबाल किया। एटला राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना में एक और तहरीक आगाज हो गया है, बहुत जल्द टीआरएस पार्टी को सबक सिखाया जाएगा। एटला राजेंद्र ने असेंबली के रुकने से इस्तीफा दे दिया है। अब अंदरून 6 माह इस इलाके में इंतखाब मुनक़िद होने वाले हैं। टीआरएस लीडर्स भी हुजूराबाद का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात कर रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह की यहां पर भीड़ भाड़ है, किसके चेहरे पर मास्क है और किसके दाढ़ी में मास्क फंसा हुआ है। यह बहुत जरूरी है, चूंकि कोविड प्रोटोकॉल जो है वो लागू है, तो इस तरह से इतनी भीड़ में किस तरह इस पर अमल किया जा सक रहा है या नहीं जा सक रहा है, जो हमारे लीडर्स होते हैं उनकी बातें क्या होती हैं, उनका अमल कैसा होता है, इस पर गौर करना बेहद जरूरी है। तेलंगाना के किसानों में खुशी की लहर देखी जा रही है। रियासती हुकूमत की जानिब से रायतू बंधु स्कीम के तहत किसानों के अकाउंट में रास्त तौर पर रकम जमा की जा रही है। जयशंकर भोपाल पल्ली के किसानों ने वजीर आला का शुक्रिया अदा करते हुए वजीर आला केसीआर के पोस्टर को दूध से नहलाया। किसानों ने कहा कि वजीर आला केसीआर ने इंतखाबात के मौके पर जो वादा किया था उसे पूरा किया है। सरकारी स्कूलों की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाने के मकसद से हैदराबाद के BRK भवन में एक इजलास मुनक़िद हुआ। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी की क़यादत में इजलास मुनक़िद हुआ। इस दौरान सरकारी स्कूलों में बेहतर से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी पर जोर दिया गया। इस इजलास में रियासती वज़रा KTR के अलावा हरीश राव, दयाकर राव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार व दीगर ने शिरकत की। आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना भर में मूसलाधार बारिश हो सकती है। हैदराबाद महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक मशरक़ी जानिब से तेज हवाओं का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से इन 3 दिनों में तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, कुमारम भीम और आसिफाबाद, मंचिरियाल, जगत्याल, रंगारेड्डी, हैदराबाद के अलावा मलकाजगिरी, संगारेड्डी में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके अलावा नागर कर्नूल, गदवाल व दीगर इलाकों में भी हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर बेदारी मुहिम चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी, अ शॉट ऑफ लाइफ। और काम है बेदारी के जरिए कोरोना को मात देना।